السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ماں اور بہنوں، آپ سب اس SIR کے لیے جو جڑے ہیں، آپ کا جو وقت اس سے لگا رہے ہیں، آپ تمام کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں ہمارے محلے کے کارپوریٹر صاحب ایاز پاشا اور پڑھنا صاحب دو بات کریں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں اور بھائیوں اور تمام نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور میری بہنوں اور آئے ہوئے تمام مہمان، ہمارے سامنے SIR، ہمارے سامنے یہ جو کام ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس کے جو SIR کے سلسلے سے آج پورے ہندوستان کے اندر مسلمان بہت پریشان ہے، اور سارے کرناٹک کی حکومت تک بھی پریشان ہے۔ بس اس کو SIR کو کس طرح کام کرنا، کس طرح معلوم کرانا، یہ ہمارے DK شکومار صاحب جو ابھی بیٹھے ہیں CM، انہوں نے خود اپیل کیے ہیں۔ تمام MLA کو انہوں نے ہدایت دی گئی ہے، MLA پورے مل کر سب کارپوریٹرز کو، سب ذمہ داروں کو، DC صاحب کو، کمشنر صاحب کو، سب کو اطلاع کی گئی ہے کہ ہمارے اناج چھیتر کے اندر 21,000 ووٹ کٹ کر دیا گیا ہے۔ تمام میری ماں اور میرے بہنوں، یہ جو مقصد ہے، یہ جو کام ہے، یہ کوئی الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کارپوریشن الیکشن آ رہا ہے کہ کارپوریشن الیکشن کے لیے صرف کارپوریٹر اور MLA محنت کریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو باقاعدہ جو آپ لوگ دیکھے ہیں کہ UP کے اندر، بہار کے اندر، بنگال کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کے ووٹ کاٹ کر BJP حکومت نے جو باقاعدہ مسلمانوں کے ووٹ کو ہٹا کر جو حکومتیں جو بنا رہے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں بنگال کا الیکشن چند دن کے اندر چلا ہے، تاکہ 9 لاکھ ووٹ وہاں پر کٹ کر دیا گیا، مسلمانوں کو پورے ہرا کر، یہاں تک کہ وہاں پر جو ممتا دیدی اس کو بھی ہرا کر باقاعدہ آ کر سدے پر بیٹھ گئے ہیں۔ میری ماں اور میرے بہنوں، سیکنڈ ٹارگٹ جو ہے اس اناج چھیتر کا ہے۔ اسی کے سلسلے سے MLA صاحب نے ہر کارپوریٹر کو یہی ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے اپنے ایریا کے اندر باقاعدہ اپنے BLO کو لے کر، باقاعدہ اپنے ایجنٹس کو لے کر، آنگن واڑی ٹیچرز کو لے کر، مسجد کے صدر، سیکریٹری اور تمام ذمہ داروں کو لے کر باقاعدہ اپنے اپنے ایریا کے اندر جتنا بھی ووٹ ہے، باقاعدہ ایک بھی ووٹ کٹ نہیں ہونا، یہ ہمیں نصیحت اور باقاعدہ ہم نے ہدایت دی گئی ہے۔ میری ماں اور میرے بہنوں اور تمام نوجوان ساتھیوں، آپ جو آئے ہیں، یہ مقصد یہی ہے، یہ الیکشن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر سے آپ کے پاس وہ آئیڈینٹی کارڈ ہے تو انشاءاللہ آپ جس نمائندے کو بھی چاہ سکتے ہیں، اس کو چن سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کانگریس کو ہی ووٹ دینا، BJP کو ہی ووٹ دینا، جنتا دڑا کو ووٹ دینا، SDP کو ووٹ دینا، یہ اصل مقصد ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب یہی فکر رکھے ہیں، ہر مسجد کے اندر ہر ایک عالم، ہر ایک حافظ قرآن، ہر ایک نوجوان اس فکر میں لگا ہے کہ کیسا بھی مسلمانوں کا ووٹ ایک بھی کٹ نہیں ہونا، یہ مدعے پر یہاں پر جمع ہیں۔ اسی کے سلسلے سے میں تمام یہاں پر BLO جو یہاں پر بیٹھے ہیں، گورنمنٹ ٹیچرز، ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں جو 30 تاریخ سے ہمارا جو کام سٹارٹ ہونے والا ہے، ہر گھر کو پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ بہت سارے کمپلینٹس BLO کے بہت سارے آ چکے ہیں، تاکہ 10 منٹ کام کیے تو باقاعدہ وہ گھر چلے جاتے ہیں، 4-5 آدمی کا کام کرتے ہیں، باقاعدہ تھک کر وہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے بات کیا ہے، ہمیں MLA صاحب سے بات کیا ہے، تاکہ MLA صاحب نے DC کو اور کمشنر کو سخت ایکشن بھی لیا گیا ہے، تاکہ جو بھی گزر گیا اتنے دن جو غفلت سے کام ہوا، اب جو سامنے 1 مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہر BLO، ہر ایجنٹ، ہر ذمہ دار جو ہے جوڑ میں رہ کر گھر گھر ڈور کو ڈور جانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ باقاعدہ اسکول کے اندر کام کر دیے، تھک گئے، یہاں پر 4-5 گھنٹے کام کر کے 5-10 منٹ کر کر 1-2 گھر جا گئے، گھروں کو چلے گئے، ایسا کام نہیں ہے۔ میری ماں اور میرے بہنوں، تمام ٹیچر سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا فرض، اپنا کام، اپنے کام کی ذمہ داری پوری طرح اٹھانا ہوگا، تاکہ بہت سارے کمپلینٹ آ چکے ہیں، MLA صاحب کو آ چکے ہیں، DC صاحب کو آ چکے ہیں،
इलेक्शन कमिश्नर तक को भी ये कंप्लेंट मिल चुका है। ऐसा काम अल्लाह के लिए ना करें। वोट बहुत जरूरी है। अगर उनका वोट कैंसिल हो गया तो बाखदा उनका आइडेंटिटी कार्ड कैंसिल हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, उनका लाइसेंस कार्ड कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारे चीजें जितने भी बनने के हैं उनके पूरे कैंसिल हो जाएंगे। उसीलिए ज्यादा से ज्यादा हर एक मस्जिद के उलमाए दीन, यहाँ पर मस्जिद के जिम्मेदारों, हर मस्जिद में काम स्टार्ट हो चुका है। मिमरा मस्जिद के अंदर काम शुरू कर दिया गया है, तमीम मस्जिद के अंदर काम कर दिया शुरू कर चुके हैं। मैं तमाम अहबाब से ही कहना चाहता हूं, जो भी मस्जिद वाले जिम्मेदार हैं, जो भी हमारे BLO रहते हैं, हम कारपोरेटर तुम्हारे साथ में रहते हैं, इंशाल्लाह जैसा जैसा काम करना वैसा वैसा हम काम कराएंगे। उसी के सिलसिले से हमारे एरिया के अंदर जो 21,000 वोट कट हुआ है, इंशाल्लाह एक वोट भी कट नहीं होना। ये MLA साहब की बहुत बड़ी जवाबदारी कारपोरेटरों के सिर पे दे गई है। मैं तमाम अहबाब से यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं, मैं अल्लाह के लिए कहता हूँ ऐसी गफलत ना करें। ये जो एक महीना है 30 तारीख से जो नेक्स्ट 30 तारीख तक एक महीने के अंदर इंशाअल्लाह जो भी वोट कट हुआ है बाखदा उसको जोड़ना पड़ेगा, उसको मैप करना पड़ेगा। जितने भी जो भी है, हर एक माँ, हर एक बहन से मैं यही कहना चाहता हूँ, जहां तक भी हमारी आवाज जाती है, एक को एक सुनाए और एक को एक मालूम कराए और हमारी आवाज पूरे एरिया के अंदर वायरल करें। जो भी अब तक जो भी है मैपिंग करा कर नहीं है, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक नौजवान से मैं कहना चाहता हूँ, मस्जिदों के अंदर बैठे हैं, स्कूलों के अंदर बैठे हैं, मोहम्मद उर्दू स्कूल के अंदर काम चल रहा है, मेवा एजुकेशन के अंदर काम चल रहा है, कर्नाटक के अंदर कर्नाटका स्कूल के अंदर काम चल रहा है, NG करीम ब्लैक उर्दू स्कूल के अंदर काम चल रहा है। हमारी हाफिज के लिए, जानकारी के लिए अगर किसी को क्या भी मालूम नहीं हो रहा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 2002 की वोट लिस्ट किसी की नहीं भी है, उसे घबराने की बात नहीं, उसे परेशान होने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह 13 पॉइंट दिया गया है, 13 पॉइंट के अंदर इंशाअल्लाह 1-2 पॉइंट हमारे मिल जाएंगे, कहीं पर भी मिल जाएंगे। हर माँ, हर एक बाप अपने बच्चों के लिए स्कूल पढ़ाए हैं, वहां पर TC मिल जाएगी। हर काम के लिए इंशाअल्लाह आसानी होगी। और सबसे ज्यादा आप घरों से निकलना है, निकलकर मस्जिदों के अंदर हो, स्कूलों के अंदर हो। देखो टीचर है, बाखदा टीचर बैठे हैं, एक जगह में रहते हैं या अपने घरों के अंदर आते हैं, निकलकर काम कराना ये बहुत जरूरी है। ये सबकी फिक्र है, ये इलेक्शन की फिक्र नहीं है। हर एक तंजीम काम कर रही है, हर एक जिम्मेदार निकलकर काम कर रहे हैं कि इस मकसद से काम कर रहे हैं कि किसी कीमत पर अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवा ले, अपने आइडेंटिटी कार्ड को मैप में ला ले। ये हर एक की फिक्र, हर एक नौजवान की फिक्र, हर घर के अंदर यही फिक्र चल रही है। मेरी माँ और मेरे बहनों, जो भी सोए हुए अहबाब हैं, उठकर अपने वोट लिस्ट को ताजा से ताजा देख ले। मैप अगर से कराकर है तो फिर से एक बार चेक कर ले। हर घर के अंदर इंशाअल्लाह BLO तुम्हारे घरों के पास आएंगे, एजेंट आएंगे, जिम्मेदार आएंगे। इंशाअल्लाह हम तक भी इंशाअल्लाह आपके घरों तक आए हैं। जो भी आप जो अब तक मैपिंग नहीं कराए हैं, आप आकर इंशाअल्लाह या घरों को BLO आते हैं, जल्द से जल्द इस तरह का काम को अंजाम देने की इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी मैं स्कूल बोला हूं इंशाअल्लाह वहां पर बाकायदा हमने इनको इंतजाम कर देंगे। 30 तारीख से जब काम शुरू होगा इंशाअल्लाह इसका इंतजाम पूरा 1 महीना हुए तक हम तमाम जिम्मेदार इंशाअल्लाह इस काम को अंजाम देंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं तमाम आवाम से जो मेरे वार्ड नंबर 12 के जितने भी हैं आए, आकर इन स्कूलों का जो मैं नाम बोला हूं इंशाअल्लाह इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तफसील से आप लोगों को चंद बात करेंगे। इन बातों को आप समझना होगा, समझकर इंशाअल्लाह इन बातों को अमल करेंगे, इंशाअल्लाह सारी अवाम का इंशाअल्लाह फायदा होगा इंशाअल्लाह। कहते हुए मैं आपकी बात को खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दो तीन अहम गुजारिशात उलमा मुफाज यूनियन ज़िला मैसूर की जानिब से। आप हजरात जानते हैं कि एक उलमा की एक कमेटी है नौजवान उलमा इकराम की, जो उलमा मुफाज यूनियन ज़िला मैसूर के नाम से है। उनकी तरफ से मैं एक तर्जुमान बन करके आपके सामने आया हूँ। 2-3 गुजारिशात हैं, उसमें खुसूसी तौर पर हमारे जो भी दोस्त साहिबान हैं इनसे हमारी एक अहम अपील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे।
पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। मुअज़्ज़ज़ जनाब कॉर्पोरेटर अयाज साहब, दीगर ज़िम्मेदारान और बीएलओस, एक बहुत ही अहम मरहला है, बहुत ही संगीनी का मामला है। ऐसे संगीनी में, ऐसे उम्मत और अवाम कौम व मिल्लत के तबाही के दौर में अगर हम जैसा जिम्मेदार तबका अवाम के लिए खड़े होकर के फिक्र न किया तो फिर मसला अवाम का बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। आप सब जानते हैं कि ये SIR के नाम से जो काला कानून बीजेपी और RSS की जानिब से जो शुरू हुआ, इसमें इनकी क्या नीयतें हैं ये बात तो साफ है। हर कोई जानता है कि इसमें ये क्या नीयत रखते हैं। तकरीबन 2002 में भी SIR हुआ, उससे पहले भी SIR होता रहा। उस जमाने का SIR और अब के SIR में बहुत बड़ा फर्क है। उस वक्त का जो SIR था, महज ये जानना मकसूद था हुकूमत को कि भी किस तरह से किसके डॉक्यूमेंट सही हैं, किसके गलत हैं, या फिर किसके डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन की जरूरत है, किसके डॉक्यूमेंट्स में कौन मर चुके हैं और कौन स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट को जा चुके हैं। वो आपस में इस्लाह की नीयत से SIR का मामला लेकर कर आते थे। अब मौजूदा जो हुकूमत है, ये मौजूदा हुकूमत SIR जो लाकर है, इसमें इनकी नीयत साफ है। अब इसमें इसकी नीयत कैसे जांची जाए, पहचानी जाए? बंगाल हमारे सामने है, बिहार हमारे सामने है। बंगाल के 80 लाख वोटरों को और उनके वोटों को काट दिया गया। वोटर्स के वोट को निकाल कर उनको वहां का शहरी न होना साबित किया गया। लिहाजा 80 लाख लोगों को आज वीडियोस के जरिए से देख रहे हैं, वो जगह जगह जाके अपनी शहरियत को साबित करने के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन पेश कर रहे हैं। उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, माजूर भी हैं, अच्छे भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब के सब जाकर के वहां अपनी शहरियत को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही मामला हमारे इस कर्नाटक के अंदर भी पैदा हो गया, मैं जनाब पंडू साहब की मौजूदगी में ये बात जुर्रत के साथ कह सकता हूं, यहाँ जो NR क्षेत्र है, सिर्फ इस NR क्षेत्र में क्या मैक्सिमम हमारे 4 लाख वोटर होंगे पंडू साहब? 3,80,000 हैं। 3,10,000 में तकरीबन 60,000 वोटर का नाम जो है लिस्ट में नहीं आया। 60,000। तो हमारे NR क्षेत्र के अंदर 60,000 लोगों को मैपिंग में ये काट सकते हैं, तो फिर मैसूर का आलम क्या है? अब मैसूर से हटकर बात की जाए तो दूसरे इलाकों का आलम क्या, पूरे कर्नाटक का मामला क्या, पूरे हिंदुस्तान का मामला क्या? ये हमारे उसूल का, हुकूक का मसला नहीं, हमारे वजूद का मसला है। अब तक उसूल के लिए लड़ रहे थे, अब तक जो हमारी लड़ाई थी वो हमारे हुकूक की लड़ाई थी कि भाई ट्रिपल तलाक हमारा हक है, हिजाब हमारा हक है। अब तक हुकूक की लड़ाई थी, अब हमारे वजूद की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हम नाकाम हो गए तो फिर हमारा वजूद ही हमारे इस हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाएगा, शहरियत को छीन ली जाएगी। लिहाजा यहां तशरीफ रखे जिम्मेदारान से हमारी यूनियन की जानिब से अपील यह है कि आप अनथक कोशिश इस बात की करें कि आपके मसाजिद में और आपके महल्लों में इस बात की पूरी फिक्र आपकी होनी चाहिए कि भी हमारे महल्ले और हमारे महल्ले की किसी गली और किसी गली के किसी घर के कौन से ऐसे अफराद हैं जिनके दस्तावेज सही नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, या फिर उनके नए बनवाने हैं। किस तरह से उनकी शहरियत को बचाया जाए। अगर आज आप खड़े होंगे, जैसे हमारे गालिबन यहाँ के प्रोफेसर साहब हैं, जैसे कि कहा कि जंग आजादी के मौके पर बहुत सारे उलमा, 5 लाख मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ और आज तक हम आजादी से जी रहे हैं। अगर उस वक्त वो हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है, ये सोच करके खामोश बैठ जाते, तो आज हम किसी अंग्रेज के घर के गुलाम होते, आज किसी अंग्रेज के घर में हम गुलामी कर रहे होते। लिहाजा
میں ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ ذمہ داری کو اوڑھ لے، جیسے ہمارے تبلیغی حضرات الحمدللہ اسے ذمہ داری سمجھ کر کے جگہ جگہ کام کر رہے ہیں، گھر گھر کی فکر کر رہے ہیں اور دستاویزات، حالانکہ ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہوتا، ان کا کام کیا ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، حشر میں کیا ہوگا، اللہ کیا چاہتے ہیں، نبی کا، یہی ان کا تبلیغی حضرات کا کام ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اللہ جزائے خیر دے پورے کرناٹک کے تبلیغی حضرات کو، انہوں نے اپنے اس ایجنڈے سے ہٹ کر کے نیا ایجنڈا تیار کیا جو SIR کا ہے، اس پر کام بھی کر رہے ہیں، اور دیگر جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے BLO سے میری ایک آخری گزارش یہ ہے، خدا را اسے گورنمنٹ کی جانب سے دی ہوئی ذمہ داری نہ سمجھے، یہ آپ کی ایک ایک کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے وجود کا مسئلہ ہے، آپ کے قوم کے وجود کا مسئلہ ہے۔ ایسا ہرگز نہ سوچیں، جیسے ہمارے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ 50 گھر تقریباً روزانہ ان کے ذمہ داری میں آتے ہیں، یہ ذمہ داری سوچ کے کریں گے تو 20 گھر میں آپ تھک جائیں گے، 20 گھروں کے بعد آپ کو کام کرنے کا بالکل ہی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ آپ سے علماء حفاظ یونین کی جانب سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، یہ قانون کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری یا گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ کریم طبقہ جو پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ طبقہ ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہمارے علماء کا طبقہ، ذمہ داران کا طبقہ، ہم لوگ اس کی فکر کریں گے تو پھر قوم کا وجود محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ قوم کا وجود برباد ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے خاندانوں میں سے کسی 5-10 کا نام آ جائے جس میں لڑکیوں کا بھی نام ہو، میپنگ میں نام نہیں آیا، اگر اللہ نہ کرے وہ حالات پیدا ہوں جو بنگال کے اندر حالات پیدا ہوئے ہیں، وہ حالات پیدا ہو جائیں جو بہار کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو پھر ہمارے خاندان کے ان افراد پر آنے والی اس مصیبت کو ہم دیکھ سکتے ہیں کیا؟ اب ایسے سمجھ جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری قوم ایک ہے، یہ سب آپس میں بھائی ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ جیسے ہاتھ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ ہوتی ہے، اگر جسم میں کسی اور جگہ چوٹ لگتی ہے تو دل اسے محسوس کرتا ہے، یہ پورے ایک جسم کی طرح ہیں، جسم میں کہیں بھی زخم آ جائے یا تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا جسم متحرک ہو جاتا ہے، کانٹا چبھتا پیر میں ہے لیکن پورا جسم متحرک ہو جاتا ہے۔ ایسا ایک جسم بن جائیں، ایک جٹ ہو جائیں، ایسے سمجھیں کہ یہ میرے خاندان کا، میری فیملی کا مسئلہ ہے، میں گھر گھر جا کر یہ کام کروں گی، یہ میری ذمہ داری سمجھ کر کے کروں گی۔ 10 گزارشات جو یونین کی جانب سے ہیں میں آپ کے سامنے کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ نمبر 1، جو ووٹر کا نام ہے ووٹر لسٹ میں موجود ہے یا نہیں، اس کی صحیح جانچ کروائیں، سرسری طور پر نہیں بلکہ مکمل صحیح طریقے سے اس کی جانچ کروائیں۔ نمبر 2، جن افراد کے پاس تمام مطلوبہ دستاویزات موجود ہیں ان کے نام بلا وجہ حذف نہ کیے جائیں۔ اگر حذف ہو گئے تمام تقریباً 11 دستاویزات پوچھے گئے ہیں، اس میں 4 ضروری ہیں، اگر وہ سب کے سب موجود ہیں اس کے باوجود نام کٹا ہے تو آپ BLOs ہیں، آپ پریشر حکومت پر ڈال سکتے ہیں، الیکشن کمیشن تک بھی آپ بات کر سکتے ہیں، تو لہٰذا کیوں حذف ہوا، ابھی کیوں نام نہیں آیا، یہ بات آپ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، میپنگ اور ویریفیکیشن کے دوران مکمل غیر جانبداری اور شفافیت کے ساتھ کام کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ بھئی یہ میرا رشتہ دار تو دل لگا کر کام کر رہے ہیں، کون کی معلوم نہیں، پہچانش نہیں ہے، سرسری طور پہ کر نہیں، شفافیت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ۔ ایسا اگر بلا تفریق مذہب بھی آپ جا رہے ہیں، ہندو کے گھر بھی چلے گئے، ایسا اس کا ساتھ دیں، وہ پریشان ہو جائیں کہ بھئی یہ ہندو ہے کہ مسلمان، ہمارا اتنا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہی موقع ہوتے ہیں ہمارے اخلاق کو ظاہر کرنے کے۔ رسول اللہ نے اسلام کو جو پھیلایا وہ تلوار کے زور پر نہیں، اخلاق کے زور پر پھیلایا ہے۔ اخلاق کو ثابت کریں۔ اور نمبر 4، گھر گھر سروے کرتے وقت عوام کو درست معلومات فراہم کریں۔ دیکھ کے ہو گیا، ساری ضروری چیزیں ہیں، دیکھ گئے، یہ دیکھ کر فوراً وہاں سے نکل گئے، ایسا نہیں، گھر گھر سروے کرتے وقت آپ ان کو ضروری معلومات بھی فراہم کریں۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، ذرا دل کے کان کھول کر کے سنیں۔ گھر جانے کے بعد دیکھ لیے واپس نکل گئے، ایسا نہیں، آپ جانے کے بعد سروے کرتے ہوئے آپ ان کو ضروری معلومات سے بھی آگاہ کریں، فراہم کریں کہ دیکھو یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو وہاں فلاں جگہ جاؤ وہ بن جاتا ہے، فلاں جگہ جاؤ وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ رہنمائی کریں، کیونکہ بہت ساری مسلمانوں میں ایسی عوام ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے،
मैसूर वन नहीं जानती और कॉर्पोरेटर हजरात के पास आने का कोई उनको जो है इल्म नहीं होता, आप हजरात उनकी रहनुमाई करें। अगर किसी शख्स का नाम फहरिस्त में मौजूद ना हो तो उसे कानूनी तरीके से शामिल करने में ताउन करें, उन्हें बताएं कि अगर नाम नहीं आया मैपिंग में तो किस तरह से नाम, अब लोग सोच रहे हैं कि मैपिंग में नाम नहीं आया तो सीधा डिटेंशन कैंप जाना पड़ेगा, किस तरह से मैपिंग में नाम अगर नहीं आया तो कैसे शामिल करवाया जाए, उस चीज की भी रहनुमाई, ये कानूनी एतबार से अगर नहीं तो फिर इस्लामी एतबार से आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 6, दस्तावेजात वसूल करते वक्त रसीद या मुनासिब इंदराज का एहतमाम किया जाए। नंबर 7, बुजुर्गों, खवातीन और माजूर अफराद के मामलात में खुसूसी ताउन, अगर वहाँ मस्तूरात हैं या माजूर हजरात हैं जो चल नहीं सकते, खुद नहीं जा सकते, ऐसे लोगों की रहनुमाई में आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। किसी भी नंबर 8, किसी भी शहरी को उसके मजहब, जात या जबान की बुनियाद पर काम न करें। किसी भी हिंदुस्तानी शहरी के साथ जबान, जात या फिर उसके मजहब के एतबार से काम न करें। ये छोड़ दें कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि फला है कि फला है, बस ये देखें कि ये हमारा हिंदुस्तानी भाई है, उस बेस पर काम करें। नंबर 9, अगर किसी दस्तावेज में मामूली गलती हो तो मुतअल्लिका शख्स को इस्लाह का मौका। मामूली गलती, नाम में सैयद मुबारक नाम फॉर एग्जाम्पल है, सैयद छूट गया, सिर्फ मुबारक आया, और सैयद छूटने की वजह से भी मैपिंग में नाम नहीं आ रहा है, तो वो सैयद को ऐड कैसे करवाया जाए, उसके पीछे काम क्या करना है, उसकी भी आप रहनुमाई करें। नंबर 10, तमाम कार्रवाई इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जारी करदा हिदायत के मुताबिक अपना काम अंजाम दे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनतों को, आप तमाम के कामों को कबूल फरमाए और मजीद अपनी जिम्मेदारी समझ करके काम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम, अब तक जो भी यहाँ पर जो बात चली, इंशाल्लाह पूरे BLO की बात बाखदा हमने पूरी सुनी गई है। इंशाल्लाह हम जो भी हमारे MLA से जो भी हमें बात आप जो भी रखे हैं, इंशाल्लाह हम MLA तक जो हमारे लेटर पेड से, जो हमारे ख़त से, इंशाल्लाह अलहाज तनवीर शेख साहब को जो BLO को क्या तकलीफ़ हुई है और क्या तकलीफ़ हो रही है, उनको, आंगनवाड़ी टीचर्स को, इंशाल्लाह हम सब बैठकर इंशाल्लाह अब जाकर मैं एक लेटर बनाऊंगा बाखदा आपके जो भी बात जो भी कही गई है। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारा लड़का बाखदा अपने पॉइंट पकड़ा है। इंशाल्लाह MLA साहब को सुनाकर आपको जो सहूलियात होना, इंशाल्लाह आपको काम करने के लिए आसानी होना। हमने बहुत सारे आप लोगों के सामने जो हमारी समझ में भी नहीं है, आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई कि यहाँ पर, और हमारे फयाज साहब भी आप लोगों को बार बार डरा दिया गया, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। इंशाल्लाह हम काम करने के लिए आए हैं, बस ये काम बस अपना फर्ज और अपनी ड्यूटी समझकर काम करना है। इंशाल्लाह हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि किसी का कार्ड भी कट नहीं होना, इंशाल्लाह कार्ड कट नहीं होना, और बाखदा आपको जो सपोर्ट होना इंशाल्लाह कॉर्पोरेटर की तरफ से, जो हमारे जिम्मेदारों की तरफ से, हमारे उलमाए दीन की तरफ से, हमारे आलिमों की तरफ से, हमारे MLA की तरफ से, इंशाल्लाह आप लोगों को क्या मदद होना, इंशाल्लाह क्या सपोर्ट होना, जो भी इंशाल्लाह आप जो भी हैं, इंशाल्लाह अब तक भी जो बाखदा जो करे हैं, मैं आप लोगों का, पूरे आंगनवाड़ी टीचर्स का, BLO का, तमाम जिम्मेदारों का मैं कहे दिल से शुक्र अदा करता हूं, ताकि आपने जो मैपिप जो करे हैं इंशाल्लाह वो कम से कम 70% हो चुका है, 90% इंशाल्लाह हो चुका है, 10% बाकी है। ये काम को भी हमें मुकम्मिल करना है। इस काम को मुकम्मिल करने के लिए इंशाल्लाह आपको जो चीज की जरूरत है, इंशाल्लाह हम कभी भी इंशाल्लाह आपके साथ तैयार है। इंशाल्लाह हम जो भी है, इंशाल्लाह हमने लड़कों को तैयार किया गया है। इंशाल्लाह आपको, हमारे उलमाए दीन भी यहाँ पर बैठे हैं, हमें बाखदा हर आदमी 13 बुत हैं आपके पास, 13 आदमियों को इंशाल्लाह हम देंगे कर हमारे मुबारक साहब इंशाल्लाह कहा गया है। इंशाल्लाह 30 तारीख को जब इंशाल्लाह आप घर घर के लिए निकलेंगे तो इंशाल्लाह हम बाखदा हर BLO को इंशाल्लाह 2 आदमी हम काम कैसा करना है, इंशाल्लाह उससे पहले 30 तारीख से पहले इंशाल्लाह हम एक बैठकर कैसा काम करना है उस तरीके से हम काम करेंगे। किसी कीमत पर भी इंशाल्लाह, बहुत सारे मस्जिदों के अंदर काम चल रहा है, बहुत सारे जिम्मेदारों ने काम कर रहे हैं, हर जगह पर तंजीमें काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह BLO कोई घबराने की, कोई डरने की बात नहीं, इंशाल्लाह आसानी से हम काम करेंगे। हमारा मकसद यही है कि किसी कीमत पर भी
जो बंगाल में हुआ, जो यूपी बिहार में हुआ, इंशाल्लाह इस कर्नाटक के अंदर हम वादा करते हैं कि किसी का वोट कट नहीं होना, इस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है, पूरी की पूरी इंशाल्लाह कोशिश कर कर हम जत्ता तुम्हें इंशाल्लाह हमें ताकत देना, जत्ता हमें सपोर्ट देना, जत्ता तुमना BLO को हमें सपोर्ट करना इंशाल्लाह, उससे कहीं ज्यादा हमने हर चीज का इंतजाम कर देंगे आराम से, इत्मीनान से इंशाल्लाह। अल्लाह को इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा इंशाल्लाह अल्लाह हम सबकी मदद करे। अल्लाह ताला इस काम में अल्लाह ताला हम सबकी आसानी फरमाए इंशाल्लाह। एक वोट भी इंशाल्लाह जाया नहीं होना, इस पर हम हमें पूरी की पूरी मेहनत इंशाल्लाह इसके लिए हम करेंगे इंशाल्लाह। BLO मिलता है, वो एक ज़ेरॉक्स कराकर मशीनों के अंदर उनके नोटिस बोर्ड को लगा दो, उन्होंने नमाज को जाती देखती कि हमारा BLO कौन है, किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, ऐसा देखिए तो काम आसान है इंशाल्लाह। मस्जिद में लोग बैठ कर निमरा में हमें क्या करना काम में बता दे तो इंशाल्लाह जो भी काम मस्जिद के अहबाब करना है इंशाल्लाह, हर मस्जिद को इंशाल्लाह हम अल्लाह तनवीर सेठ साहब को हम बाकायदा इत्तिला करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको हम लेटर डालेंगे। मस्जिदों के अंदर जैसा काम करना है इंशाल्लाह हम आकर हर मस्जिद के अंदर इंशाल्लाह हर नमाज आज BLO को जोड़ कर मस्जिद के जिम्मेदारों को एक जोड़ उनका भी हो, उनको समझा कर तुम्हारी मस्जिद के अंडर में जितने घरान उन लोगों के नामा और उनके BLO कौन है, वो एक मुस्तकिल जवाब बना को उनके नोटिस बोर्ड को लगा डाला, तो इनका काम भी आसान हो जाता, आवाम का काम भी आसान है इंशाल्लाह। ये बहुत इंशाल्लाह ये बात बहुत जरूरी है। मस्जिदें वाले हमारे से कई ज्यादा बहुत सारी मस्जिदों के अंदर खिदमत चल रही है इंशाल्लाह, बाकायदा मस्जिदों वाले खिदमत कर रहे हैं इंशाल्लाह। BLO को उन्होंने बाकायदा पूछ रहे हैं इंशाल्लाह। हम जैसा सबसे इंशाल्लाह 30 तारीख के बाद जैसे काम करना है हम इंशाल्लाह वैसा काम कर मस्जिदों के अंदर BLO को और हमारे जिम्मेदारों को, हमारे एजेंटों को किस तरह डिवाइड करना इंशाल्लाह, ऐसा डिवाइड कर हमारा मकसद यही है कि किसी कीमत पर कट नहीं होना है, कहाँ तक जाना है इंशाल्लाह इसके अंदर हम जाकर इंशाल्लाह खूब जद्दोजहद कर हम जान माल से इंशाल्लाह हम भरपूर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। कि अल्लाह से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम भरपूर हम काम करेंगे इंशाल्लाह।